وبركاته. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. أعوذ بالله صدق الله العظيم. اے کربلا کی خاک سے حسین کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگے گوشے مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رسول. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا دے دیا. بارگاہ رسالت صباح ہدیہ درود پاک پیش سیدنا یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاتح مسجد الحرام اور آسمان اسلام جب مقدس الحرام آتا ہے تو ہمیں عباسائی رکھتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. کربلا کے ریت پر امام حسین نے اپنے جانثاروں کی اپنی آل و اولاد قربانی اسلام کے لیے پیش فرمائی. جو نبی اور آل نبی سے محبت کرتا ہے تو ضرور ضرور ضرور
بیت کی قربانی کو یاد کرتا ہے، شہادت کو یاد کرتا ہے، شہادت کو سنتا ہے اور امام حسین سے محبت کرنے والے ان کا ذکر اور چرچا کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک کرتے رہیں گے۔ شہادتیں بہت ہوئی ہیں، قربانیاں بہت کی گئی ہیں، لیکن جو شہادت امام حسین کی ہے ہوئی ہے صبح قیامت کو۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے پیچھے گلا ہے پھر بھی کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، چھری کے پیچھے گلا ہے پھر بھی کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم۔ آج صبح میں ذکر کر رہی امام حسین بعد دس امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے، بعد کا پروگرام زیادہ کی بات ہے۔ آپ رام آٹ پر اور تفصیل دیکھیں، 10 روز کا پروگرام ہوتا ہے، 10 ہر دن فاروق اعظم وزیر آباد میں بھی 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک بعد شاہ پروگرام ہوتا ہے۔ دلی کے نہ جانے کتنے کوشے کونوں میں ہندوستان کے بیشتر صوبوں میں، صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں امام حسین سے محبت کرنے والے رہتے ہیں، 10 دن امام حسین کے نام کی مجلس سے سجاتے ہیں اور پھر پورے محرم الحرام تک کبھی حسین ہوتا رہتا ہے۔ تو آج جمعہ میں کر رہے ہیں، اللہ ہمارے سنی کو امام حسین کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، ہماری پریشانی دور فرمائے، دنیا اور آخرت ہماری خیر فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو محبتوں کا ہم ادا نہیں کر سکتے۔ چرچا ذکر جلسے وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں حسین سے محبت ہے، جس سے محبت ہوتی ہے وہ گاتا ہے، گلیاروں میں غور کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے نام کا جلسہ سجاتا ہے۔ اس کی تو دنیا کے نیتا سے محبت ہوتی ہے، لیکن سنیوں تم خوش نصیب ہو، مدینے والے داتا کے چاہنے والے ہو، حسین اعظم کے چاہنے والے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت امام حسن، امام حسین، علی اور فاطمہ کو دکھا کر کے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور یہیں پر بس نہیں فرمایا،
بلکہ آگے دعا فرمائی مولا کہ ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کرنا۔ اے سنیو، آج اپنی محبت پر جتنا چاہو اتنا ناز کر لو کہ اللہ کی توفیق ہے جو ہمیں ذکر حسین میسر آیا ہے۔ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ آج ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت امام حسن سے محبت کرتے ہیں، حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نے دعا فرمائی اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما، ہم ان سے پیار کرتے ہیں اللہ ہم سے پیار فرما۔ واقعات کربلا، نقش کربلا بہت لمبا ہے اور اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ پوری شہادت پوری نقش کربلا بیان کی جائے۔ آج حضرت امام علی اصغر اور حضرت امام شہادت آپ کو پیش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچ جاتے ہیں اور 10 محرم الحرام کو جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرت حرب کی شہادت، مسلم ابن اوسجا کی شہادت، حضرت عمر محمد کی شہادت، حضرت حسن کی شہادت، حضرت علی اکبر کی شہادت اور دیگر شہادتیں کربلا میں ہو چکی۔ بی بی شہربانو اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تشریف لے کر آتی حسین کی بارگاہ میں کہ حسین 6 ماہ کا علی اصغر کبھی بے ہوش ہوتا ہے، کبھی ہوش میں آتا ہے، کبھی ایڑیاں رگڑتا ہے، کبھی پیروں کو روک لیتا ہے، کبھی کھچیاں کھولتا ہے، کبھی کھچیاں بند کرتا ہے۔ اس کو پانی کی ضرورت ہے، اے حسین میرے فرات پر چلے جاؤ، یہ بچہ ہے بچہ، بچے کے لیے پانی دینے سے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ دشمن بھی بچوں کی پیاس کا خیال کرتے ہیں، بچوں کی دکھ اور تکلیف کو دشمنوں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ نہر فرات پر علی اصغر کو لے کر کے پہنچ جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا اے سخی ابن سخی ہوئی، مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے سوال کرنا نہیں آتا، میرے خاندان کی چیز جو ہے وہ مانگنا نہیں ہے بلکہ عطا کرنا ہے، سخاوت کرنا ہمارا شیوا ہے۔ حضرت شہربانو زینب نے فرمایا، عرض کیا اے سخی ابن سخی، آج ہم تمہارے بارگاہ میں سوالی بن کر آئے ہیں، یہ سوال پورا کر دو۔ مظلوم علی اصغر کو نہر فرات پر لے جاؤ، کسی ظالم کے دل میں تو رحم آئے گا۔ چند قطرے پانی کے اگر اس کے منہ میں ڈال دیے گئے تو فاطمہ کے چمن کی لمبی سی کلی مرجھانے سے رہ جائے گی، مرجھانے سے بچ جائے گی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میری غیرت کو گوارا نہیں کرتی لیکن تم کہتی ہو تو میں چاہتا ہوں۔ امام حسین اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، چادر کو اوڑھتے ہیں اور نہر فرات کی طرف چل پڑتے ہیں۔ عمرو بن سعد نے پکار کر کے کہا دیکھو حسین اپنے سینے سے صلح کے لیے قرآن لے کر کے آ رہے ہیں، اگر وہ یزید کی بیعت کر لیں تب ٹھیک ہے، نہ کریں تو تیر چلانے میں، حملہ کرنے میں، وار کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ الصمد۔ امام حسین جب پہنچے نہر فرات پر آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم
तुम्हारा लड़ाई और झगड़ा है तो मुझसे है, और लड़ाई और झगड़ा ये है कि तुम कहते हो कि मैं यजीद की बैत कर लूं, मैं कहता हूँ यजीद फासिक व फाजिर है, एक फासिक व फाजिर के हाथ पर बैत की जाएगी। अल्लाह समद। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं बैत नहीं करूंगा, लेकिन ये छोटा सा बच्चा जो है ये यजीद की बैत को नहीं जानता है, तुम इसको चंद कतरे पानी के दे दो, कल नाना के हौज कौसर से शफाअत करा कर के तुम्हें कौसर के जाम पिलाऊंगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतना कहा, जवाब आता है, ए हुसैन, हम तेरे बच्चे को, रोना तुम्हें तुम्हारे बच्चे का नहीं देखा जाता, लेकिन तुम्हारे बच्चा आइंदा जिंदगी में कभी नहीं रोएगा। अल्लाह समझ। मुरमला इब्न साहिल की तरफ इशारा किया अम्र इब्न साद ने, उसने एक तीर चलाया। तारीख में आता है जंग में दो तरीके के तीरों का इस्तेमाल होता था, एक तीर जो घोड़ों के बदन पर इस्तेमाल होते थे तो ज्यादा तेज हुआ करते थे, एक तीर जो इंसान के जिस्मों पर इस्तेमाल हुआ करते थे। तो हजरत इमाम अली असगर को जो तीर मारा गया था वो घोड़ों पर चलने वाला था। अल्लाह, वो तीर चमकता हुआ आता है, चमकता हुआ आता है, सनसनाता हुआ आता है, मखदूम अली असगर के हल्क में आकर के बेबस हो गया। एक रिवायत में यहाँ तक लिखा है, हल्क को छेदता हुआ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बाजू में आकर के ठहर गया। आपने अपने बच्चे को करबला की रेत पर रखा और जब हाथ से उस तीर को खींचा था, उसके बाद खून का फुब्बारा आता है। आपने उस खून के फुब्बारे को अपने हाथ में ले लिया। चुल्लू में लेने के बाद आसमान की तरफ उछालना चाहते थे, आसमान से आवाज आती है, ऐ हुसैन, मजलूम अली असगर के खून को आसमान की जानिब न उछाल देना, अगर आसमान की जानिब उछाल दिया तो क़यामत तक ज़मीन वालों पर अब्र बारा हम गिरने नहीं देंगे। इमाम हुसैन को जमीन पर डालना चाहते थे, आवाज आती है, इमाम हुसैन, अली असगर के खून को जमीन पर नहीं डालना, अगर जमीन पर डाल दिया तो सुबह क़यामत तक जमीन से कोई सब्जा पैदा न होगा। इमाम हुसैन का आसमां तो है, राजी जबी नहीं है, असगर तेरे लहू का ठिकाना कहीं नहीं है। आपने खून को लिया और अपने चेहरे पर मल दिया और दो जल कदमों से अपने बच्चे इमाम मजलूम अली असगर की लाश को लेकर के अपने की तरफ आते हैं, लेकिन जब शहादत हो गई तो एक हाथों को उठा करके आपने दुआ फरमाई, ऐ मौला, तेरा शुक्र व एहसान है कि तूने मेरे, ऐ परवरदिगार, मेरे 6 महीने के बच्चे अली असगर की शहादत हो गई, मेरा बच्चा दीन इस्लाम के लिए काम आ गया, तेरा शुक्र व एहसान है मौला, लेकिन मेरे इस बच्चे मजलूम अली असगर की शहादत को कबूल फरमा ले। अल्लाह। इमाम हुसैन हजरत अली असगर के लाशों को लेकर के आए, समझने लगी कि शायद बच्चे को पानी दे दिया है, इमाम अली असगर को पानी मिल चुका है, पानी पिला दिया गया है। पूछा, ए हुसैन, पानी मिल गया? इमाम हुसैन ने कहा, हाँ, पानी तो मिल गया, लेकिन नहरे फुरात का पानी नहीं, बल्कि हौज़े कौसर के जाम से सैराब करा के लाया हूँ। कहने के अंदर चीखें निकल जाती हैं। हजरत सकीना इमाम अली असगर के झूले को पकड़ पकड़ करके रोती है, हाय अली असगर, अब तेरे झूले को अब मैं किसका झूला झुलाऊंगी, तेरा झूला खाली हो गया है। अल्लाह अकबर। एक क़यामत सुगरा वफा थी। अल्लाह अकबर। जब शहादत आती है उसके फौरन बाद आबिद इमाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो कि करबला की सरजमीन पर हालत बुखार में, शिद्दत का बुखार था, अपने ताकत को समेट करके हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला
बारगाह में हाजिर थी। अर्ज करते हैं अब्बा जान सब जा चुके हैं, अब मुझे भी रन में जाने की इजाजत अता फरमाइए। मेरे इमाम ने फरमाया, ऐ बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हें जाना नहीं है, तुम चले गए तो मेरे बाद हुसैन की नस्ल का खातिमा हो जाएगा। ऐ बेटा तुम्हें रन में नहीं जाना है, बल्कि मेरे बाद तुम्हें इस काफिले की क़यादत करना है। मेरे बाद तुम्हें इस काफिले को मदीनतुर रसूल लेकर के जाना है। और जिस तरीके से एक एक यजीदी ने एक एक हुसैन पर हुक्म किया है, पूरी दास्तान नाना की बारगाह में जाकर के बयान करना है। ऐ बेटा तुम्हें मेरे कारवां बनना है, ऐ बेटा तुम्हें करबला से वापस जाना है। मेरे बाद हुसैनी सज्जनों का जो सिलसिला चलेगा वो तुमसे ही चलेगा। अल्लाह बहुत इसरार किया, लेकिन इमाम हुसैन ने इजाजत अता न फरमाई। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम का अमामा सर पर सजाया। हजरत जाफर तैयार हाल में पटका हजरत अमीर हमजा का बांधा और उसके बाद जुल्फ़िकार हैदर को दिया और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गठ खोली और गठ खुलने के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, दुपट्टा निकाल करके, ऐ हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते हो? हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा का दुपट्टा है। कहा, ऐ भैया मेरी माँ ने मुझसे इरशाद फरमाया था और वसीयत फरमाई थी, विसाल से पहले ऐ ज़ैनब जब करबला में जाए तो दुपट्टा अपने पास रख ले, उस दुपट्टे को करबला में अपने साथ लेकर के जाना। और जब हुसैन रन में जाए, जब हुसैन शहादत के लिए जाए तो उस कब्र से इस दुपट्टे को बांध देना, इसलिए कि उसका मिशन बहुत बड़ा मिशन है, उसका काम बहुत बड़ा काम है, उसका मिशन बहुत अजीब है। बेटी जब कोई भी अपनी माँ के आंचल से शायद मिशन पर निकलता है तो वो अपने मिशन से नाकाम नहीं होता है। जिसके साथ माँ की दुआएं हो, जिसके साथ माँ का आंचल हो, अल्लाह समझ कहा कि भैया मेरी माँ ने कहा है कि मेरे हुसैन की खबर से इस दुपट्टे को बांध देना। आज मैं माँ की वसीयत कर रही हूँ। सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन के कमर से सैयदा फातिमा ज़हरा का दुपट्टा बांध दिया। उसके बाद आप जब घोड़े पर सवार होने लगे, आप वसीयत फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे घर वालों, मेरे बाद मातम न करना, मेरे बाद बालों को न नोचना, मेरी शहादत के बाद कपड़ों को न फाड़ना, मेरी शहादत के बाद लोहा न करना। अल्लाह अकबर, ये जो बातें ये जो चीजें हैं और बहुत सारी वसीयतें फरमाई। नमाज की पाबंदी करना, झूठ से परहेज करना, गुनाहों से बचते रहना, दीन के लिए कैसी परेशानियां बर्दाश्त करते रहना। क्या आपको समझते हो बस मोहब्बत बनने के बाद खिजला बनाकर के खा लिया जाए यही मोहब्बत है, हुसैन से मोहब्बत है? ताजिया बनाकर के खा लिया जाए ये हुसैन से मोहब्बत है? नहीं, ये जो वसीयत इमाम हुसैन ने फरमाई थी सिर्फ अपने घर वालों के लिए नहीं, बल्कि सुबह क़यामत तक जितने मुसलमान है सबके लिए फरमाई थी। इस वसीयत का कौन कितना पास रखता है, कौन कितना लिहाज रखता है, कौन इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, इस वसीयत को मानने में क्या फरमाया था? नमाज अदा ना करना, नमाज ना छोड़ना। क्या फरमाया था? कितने लोग हैं जो आज नमाज पंजगाना की पाबंदी करते हैं। इमाम हुसैन ने क्या फरमाया था? दोहा ना करना, गिरफ्तारी ना करना, मातम ना करना, कपड़े ना फाड़ना, बालों को धूल में लुट मत करना। और सारी बातें फरमाई। कितने लोग हैं जो हुसैन होने का दावा करते हैं, जो झूठ से परहेज करते हैं, किसी मुसीबत पर
और शिकवा जबान पर लेकर के नहीं आते हैं, किसी मुसीबत में खुदा की नाशुक्री नहीं करते हैं। कितने लोग हैं जो पंजगाना नमाज अदा करते हैं, कितने लोग हैं जो झूठ से परहेज करते हैं। आज कितने हुसैनी है जो हुसैन के नाम पर गुनाहों से बचा करते हैं। अल्लाह वही इमाम हुसैन शाद फरमाते चले जा रहे हैं। फरमाया था, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मैं जानता हूँ तेरे बाद में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत रो लिए और अभी बहुत रोना बाकी है। मैं जानता हूँ तुम्हारे सरों से चादरें छीन ली जाएंगी, मैं ये जानता हूँ तुम्हारे हाथ और पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी, मैं ये जानता हूँ तुम्हें कैद खानों की मुसीबतों से दो चार होना पड़ेगा, ऊँटों की नंगी पीठों पर तुम्हें बिठा दिया जाएगा। लेकिन मेरी बहन ज़ैनब, मदीने से मक्के तक मेरा साथ दिया, तूने मदीने से करबला तक मेरा साथ दिया और अपनी जिंदगी भर की कमाई दोनों पति दोनों बेटों और मोहम्मद को मेरे नाम पर कुर्बान कर दिया। लेकिन तूने सब्र और रज़ा का दामन न छोड़ा, कोई सब्र और रज़ा बन करके तूने दिखा दिया। मैं तुझे अपनी वसीयत करता हूँ, मेरी बहन और मेरे घर के बच्चे, मेरे घर की बीवियों, सुनो, हम साबिरों की माँ, तुम साबिरों की माँ हो, तुम साबिरों की बीवियां हो, तुम साबिरों की औलाद हो। जुल्म और सितम के पार भी तोड़े जाए तो इस्लाम के लिए बर्दाश्त कर लेना, लेकिन सब्र और रज़ा का दामन अपने हाथों से फरमाई। और आप थोड़े देर लगाकर आगे बढ़ना चाहते थे, पेड़ लगाते हैं, चाबुक करते हैं, लेकिन आगे बढ़ रहा है। इमाम हुसैन फरमाया, मेरे गाजी से डर गया, घोड़े में चिल्ला करके करके इशारा किया। इमाम हुसैन गोया अपनी ज़बान में कह रहा था। इमाम हुसैन को पीछे दिखाया कि जरा पीछे देखिए, पीछे इमाम हुसैन ने देखा, देखने के बाद सकीना ने दोनों पैरों को पिछले घोड़े के दोनों पैरों को पकड़ लिया था। घोड़ा अपनी ज़बान में कह रहा था, ऐ मेरे आका हुसैन, मैं यजीदियों से डरा नहीं हूँ, बल्कि मैं इसलिए डर रहा हूँ कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो सकीना ने मेरे दोनों पैरों को पकड़ लिया है। सकीना की मोहब्बत की मेरे पैरों में पड़ चुकी है। ऐ मेरे आका हुसैन, मैं यजीदियों से डरा नहीं हूँ, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो सकीना दब जाएगी और मैं सकीना को दबा करके यजीदी बनना नहीं चाहता हूँ, बल्कि सकीना को बचा करके मैं हुसैन बेटी सकीना को करके लगाया। सकीना निकल गई है। बाजार, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, जहाँ कोई जाता है जिंदा वापस जाता है। तो चार पास गए, बाजू पलक दिए गए, भैया अली अकबर गए, शहीद कर दिए गए। 6 महीने का मेरा भाई अली अकबर गया, जालिमों ने उसको भी मौत की आगोश में सुला दिया। ऐ अब्बा जान, और मोहम्मद गए थे, उनके लाशें वापस आए। ऐ अब्बा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? यार कभी चाहता है मौत का जाम नोश करने के बाद वापस आता है, आपके बाद इसको अब्बा अब्बा कह करके पुकारूंगी। ऐ अब्बा जान, आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती है, मैं किसके कौन मेरे दिल को दिलासा देगा, कौन मेरे अरमानों की कदर करेगा। अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना इस तरीके से अपने अब्बा से हम कलाम है। इमाम हुसैन ने कहा, सब्र करो, सब्र करो, ये यजीदी तेरे अरमानों की कदर करे ना करे, लेकिन कल अहले बैत से मोहब्बत करने वाले जो होंगे तेरा नाम फख्रिया तौर पर बयान करेंगे, तेरी मजलूमी की दास्तान सुन करके अपने दिलों को झुका देंगे, आंखों से तेरी मोहब्बत को जरूर आंसू देंगे। तेरे अरमानों की कोई कदर करे ना करे, लेकिन कल का मुसलमान नबी की आल से मोहब्बत करने वाला हमारे अरमानों की कदर जरूर करेगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अलविदा कहा अपने को, अलविदा कहा अपनी
को, अलविदा कहा अपने घर वालों को, अलविदा कहा अपने छोटे छोटे जो बच्चे उसमें रह गए थे उन लोगों को। अल्लाह पर पेड़ लगाई, घोड़े को रथ पहुंच गए। आप जब उनमें पहुंचे, आपने फरमाया, ऐ यीशु, तुमने, मैं एक मरतबा फिर तमाम हुज्जत करना चाहता हूँ, हल वो कौन है जो इस्लाम में मेरी मदद करे, या अगर कोई आना चाहता है तो अब भी आकर के मेरी मदद कर सकता है दीन के लिए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ यीशु, पहले तुमने हमें खत लिखा, खत लिखने के बाद जब मैं यहाँ पर पहुंच गया तुमने मेहमान बनाकर के मुझे बुलाया, उसके बाद तुमने मेरे ऊपर खाना बंद कर दिया, उसके बाद तुमने मेरे ऊपर पानी बंद कर दिया, उसके बाद तुमने हुर को शहीद कर दिया, उसके बाद मुस्लिम इब्ने औसला को शहीद कर दिया। हम जानते हो हम कौन है। हम इस दुनिया के अंदर अगर किसी नबी का नवासा है तो वो मैं हूँ। इस दुनिया के अंदर अगर कोई नबी की आल है तो मैं हूँ। हमारे नाना की लाई हुई नमाज पढ़ते हो, हमारे नाना का लाया हुआ कलमा पढ़ते हो, हमारे नाना का लाए हुए इस्लाम को मानते हो, और नमाजों में हमारे नबी को, हमारे नाना पर दुरूद पढ़ते हो। और वह अला आली मोहम्मद, यानी आली मोहम्मद को नमाजों में दुरूद पढ़ते हो। और आज मेरे अपने हाथों को रंगीन करने के लिए तुम आमादा हो, मेरे खून से अपने दामन को दागदार करने के लिए तुम आमादा हो। अल्लाह समझ। आपने फरमाया, पहले तुमने मुझे मेहमान बुला करके बुलाया, उसके बाद तुमने मुझे ऊपर पानी बंद किया, मेरे ऊपर खाना बंद किया, फिर हुर को शहीद कर दिया, फिर मुस्लिम इब्ने औसला को शहीद कर दिया, फिर तुमने औला मोहम्मद को शहीद कर दिया, फिर तुमने अब्बास के फांसियों को कलम कर दिया, फिर तुमने हजरत कासिम का शबाब लूट लिया, फिर तुमने अली अकबर की जवानी को लूट लिया, फिर तुमने मजलूम अली असगर के हल्क में तीर बेबस कर दिया। अब उसके बाद तुम चाहते हो कि हुसैन के गर्दन पर भी खंजर चला दिया जाए। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन जब इतना कलाम कर रहे थे, अम्र के साथ ने कहा, हुसैन गलती तुम्हारी है, कसूरवार अली असगर नहीं था बल्कि कसूरवार तुम हो। अगर तुम पहले ही मैदान में आ जाते तो तुम्हारे 6 महीने के बच्चे अली असगर का बचपना बच जाता, 18 साल के अली अकबर का जवानी बच जाती, 22 साल के भतीजे कासिम का शबाब बच जाता, और मोहम्मद के बचपने बच सकते थे। लेकिन तुम इन लोगों को पहले भेजते रहे और तुम बाद में आए। अल्लाह। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगों, इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तमाम हुज्जत करना चाहता था, मैं हुज्जत को तमाम करना चाहता था, इसलिए कि आज भी मैं तुमसे कहता हूँ, कोई है जो दीन में मेरी मदद करे, वो दीन में मेरे मददगार थे। अगर तुम भी दीन में मेरी मदद करना चाहते हो तो सुनो, घुड़ के कातिल को माफ कर दिया जाएगा। अगर तुम आज भी तौबा कर करके दीन में मेरी मदद कर लो तो याद रख लो, उनके साथ उनकी शहादत के उनके कातिलों को माफ कर दिया जाएगा। आज भी अगर तुम तौबा करके मेरी तरफ आ जाओ तो मोहम्मद के कत्ल को माफ कर दिया जाएगा। आज भी अगर तौबा करने के बाद तुम मेरी तरफ आ जाओ, कासिम के शराब को लूटने का जुर्म माफ कर दिया जाएगा। आज भी अगर तुम तौबा करने के बाद मेरी तरफ आ जाओ, दीन में मेरी मदद करो, 18 साल के बेटे की जवानी को लुटाने के बाद मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। 6 महीने अली असगर के 6 महीने के अली असगर जिसने मेरी झोली में दम तोड़ा, मैं उसकी शहादत को माफ कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मैं सबसे आखिर में मैं इसलिए आया हूँ कि अली अकबर का कातिल कातिल मोमिन है, अली असगर का कातिल कातिल मोमिन है, हुर का कातिल कातिल मोमिन है, औला मोहम्मद का कातिल कातिल मोमिन है, अब्बास का कातिल कातिल मोमिन है, कासिम का कातिल कातिल मोमिन है, अली अकबर का कातिल कातिल मोमिन है। इन तमाम लोगों को तुमने शहीद किया है, इनका कातिल कातिल मोमिन है, लेकिन तुमने अगर मुझे शहीद कर दिया तो मेरा कत्ल कत्ले मोमिन नहीं बल्कि कत्ले दीन बन जाएगा। आखिरी बार समझा रहा हूँ, अब भी तौबा कर लो और दीन की मदद करो। बयान करते रहे, लोगों की मदद करने हो गई और अंतरीक्ष कुछ लोग
इमाम हुसैन इस तकरीर को सुनकर के दिलों को दिल पसीज गए। लेकिन हमने साथ में कहा कि हुसैन ज्यादा चीजें मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खूब जो है मौका मिला है अपनी शान बयान करने का। इमाम हुसैन ने फरमाया, जालिम मैं अपनी शान बयान न करूंगा तो कौन करेगा? अगर मैं अपना हक बयान न करूंगा तो कौन करेगा? अगर मैं अपनी शान बयान न करूंगा तो कौन करेगा? तो उस समय इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम नहीं चाहते अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन से कहा गया, अमर के साथ कहा, हुसैन आ जाओ हमारी तरफ, यजीद की बैत कबूल कर लो वरना जन्नत के इंतजार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर मुझे यजीद की बैत करना होती तो मदीना छोड़ करके यहाँ ना आता, मक्का छोड़ करके यहाँ ना आता। अल्लाह अकबर, मैं अपने 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी ना देता, 18 साल के अली अकबर को कुर्बान ना करता, 22 साल के कासिम को कुर्बान ना करता और मोहम्मद की कुर्बानी ना देता, मुस्लिम इब्ने औसजा और हुर की शहादत ना करवाता, तो मदीने में बैठे बैठे मैं यजीद की बैत कर लेता। लेकिन जान दो यजीद फासिक व फाजिर है, यजीद जानी है, यजीद शराब पीता है, यजीद नमाज को छोड़ दिया करता है, यजीद महरमास पर निकाह को जायज समझता है, यजीद शरीयत को नहीं बल्कि अपनी तबीयत को मानने वाला है। और मैं इमाम बर्फ होने के बाद उसकी जिहाद पर बैत नहीं करूंगा। इमाम हुसैन जानते थे कि अगर यजीद जैसे फासिक और फाजिर के हाथ पर इमाम बरहक ने बैत कर ली तो कल इन मुसल्लों पर फासिक और फाजिर हुकूमत करना शुरू कर देंगे। इसलिए इमाम हुसैन ने सर को दे दिया, लेकिन यजीद के हाथ पर हाथ देना गवारा नहीं। असल वजह यही है, कुर्बान वजह है हो गया था, बल्कि वो जिन औरतों का नाजायज है, खराब है, उनका कायल था, यानी महरमास को जिसका जायज है, झूठ बोलता था, कुत्ते और बंदर का खेल देखता था, वो शराब पीता था, उसके यहाँ जिना करना कोई ऐब नहीं समझा जाया करता था। इसके अलावा और भी बुराइयां यजीद के अंदर मौजूद। बताओ इमाम हुसैन अगर बैत नहीं देते तो आज मुसल्लों पर तहफ़्फ़ुज़ बाकी रहता, आज इस्लाम का चेहरा हमारी माओं के साथ शक्ल में होता, क्या आज कोई कुर्बानियां देने वाला होता हुसैन के नाम पर? नहीं। लेकिन आज हम देखें, आज नमाज छोड़ने के बाद हम मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि यजीद हुसैन मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज शराबे और पीने के बाद, नशा करने के बाद, क्या हम बताओ जो मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं तो हुसैन के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जिना करने के बाद, पाप की जगह डालने के बाद हम हुसैन के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि यजीद के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज गुनाह करने के बाद हम यजीद के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि हुसैन के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐ लोगों सुनो, हुसैन का मिशन जो आगे लेकर के चलेगा, हुसैन का मिशन ये है कि नमाज तुम्हारी छूटने ना पाए, हुसैनी मिशन ये है कि तुम्हारी जबानों पर झूठ ना आने पाए, हुसैनी मिशन ये है कि तुम किसी नशा के करीब ना जाओ, हुसैनी मिशन ये है कि गुनाहों के खेमे में आग लगा दो, हुसैनी मिशन ये है कि जिना के करीब ना जाओ, हुसैनी मिशन ये है कि झूठ के करीब ना जाओ, हुसैनी मिशन ये है कि हर गुनाह से दूर हो जाओ और नेकियों के करीब हो जाओ। लोग हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, आज ऐसे तो उठेंगे कि हम अपने चेहरों पर नबी की सुन्नत जरूर सजाएंगे, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से पंजगाना नमाज के वक्तों में अदा करते रहेंगे, आज से कम न तोलेंगे, आज से चुगलखोरियां न करेंगे, आज से किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, आज से झूठ के करीब नहीं जाएंगे, आज से अपने मुंह पर नशा और शराब नहीं लगाएंगे, आज से जो है इसके हलाल कमाने की कोशिश करेंगे, इसके हलाल की दुआएं मांगेंगे। अल्लाहू अकबर। हुसैनी मिशन पर अमल करोगे तभी हुसैनी बनोगे, वरना ये मिशन पर अमल करोगे तो समझते किस तरफ जा रहे हो। हुसैन के तरीके पर नहीं बल्कि यजीद के तरीके पर है। इशारों इशारों में पैगाम दे दिया मैंने वक्त है। अलबत्ता इमाम हुसैन ने कहा कि ठीक है, कौन है जो अपने बच्चों को यकीन कराना चाहता है मेरे सामने आ जाए, कौन है जो अपनी बीवियों को
सेवा कराना चाहता है वो मेरे सामने आ जाए। कौन है जो बहुत बड़ा दिलदार है, कौन है जो बहुत बड़ा शहसवार है, कौन है जो बहुत बड़ा ताकतवर है, आओ मेरे सामने। इमाम हुसैन के सामने पहलवान आते रहे, इमाम हुसैन अपनी तलवार को उनको जहन्नम तक पहुंचाते रहे। इमाम हुसैन के सामने आते रहे सूफी और सूफियों को गिरफ्तार करते चले गए इमाम हुसैन। कहा अमर के साथ कहा अगर एक एक करके इसके मुकाबले में जाते रहे तो 22,000 का लश्कर से जो है कट जाएगा और एक तारीख कर दी जाएगी। एक अकेले हुसैन ने 22 लाख के लश्कर को शिकस्त दी है। अल्लाह, इसलिए चारों तरफ से घेर लो। हजरत इमाम हुसैन को घेर लिया जाता है। इमाम हुसैन ने को चलाना शुरू किया है। मैमना पर हमला किया, मैमना को मुंतशिर कर दिया। मैसरा पर हमला किया, मैसरा को मुंतशिर कर दिया। लश्कर के कल्ब पर हमला किया, कल्ब के लश्कर के कल्ब को मुंतशिर कर दिया। आप जिधर अपनी तलवार घुमाते थे पुश्तों को पुश्ते लगा दिया करते थे, लाशों का अंबार लगा दिया करते थे। किसी का सर कट कर गिर रहा है गाजर और मूली की तरह, किसी का बाजू कट रहा है, किसी का कस्पा कर रहा है। जिधर इमाम हुसैन रुक कर लिया करते थे लाशों की अंबार लगा दिया करते थे। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा उसे भी देखिए शेरे खुदा मालूम होता है। बड़े बड़े इमाम हुसैन ने एक ही बार में उनको जहन्नम में पहुंचा दिया। गिरा फौलाद का टुकड़ा जमीन पर सरजू होकर तकब्बुर बह गया शख्सों के बस्ते सख्तू होकर। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की तलवार का चल रही थी, ऐसा लग रहा था आसमान की सारी बिजलियां इमाम हुसैन की तलवार में आ गई है। इमाम हुसैन की तलवार क्या चल रही थी, ऐसा लग रहा था हैदर कर्रार का बाजू इमाम हुसैन के बाजू में आ गया है। समंदर की सारी बिजलियां और रफ्तारें इमाम हुसैन की तलवार में आ चुकी थी। कोई तलवार को रोक नहीं सका, सकीना का ख्याल तलवार को नहीं रोक पा रहा है। अब्बास के बाजू कट चुके हैं, तलवार नहीं रुक रही है। अली अकबर की जवानी रुक चुकी है, तलवार नहीं रुक रही है। कासिम के शबाब का तलवार को नहीं रोक पा रहा है। औलाद हो जाती है, तलवार रुक जाती है। इमाम हुसैन थोड़े से जमीन पर लेकर के आते हैं और कहा गया चारों तरफ से बारिश कर दो। घोड़े बारिश हो गई। अल्लाह अकबर लगे एक शादी में आकर लगता है आपको खुश आ गया, जमीन पर आ गए, आपने अपनी हालत सच्चे में कर दी। और शिमर रोशन उसके अलावा सन्नान के अलग एक और ये दो तीन लोगों ने किताबों में अलग अलग किया है कि इमाम हुसैन का सर काटा, तो शिमर के बारे में ज्यादा है तो इसलिए इमाम हुसैन का सर काटा है। इमाम हुसैन अल्लाह तआला को सजदे की हालत में थे और सजदे की हालत में इमाम हुसैन का सर सीधा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस जोहर का वक्त था, मिंबर पर खतीब खुतबा दे रहे थे, नमाज़े जुमा की तैयारी थी। नवाज़े रसूल दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। इस दुनिया हमारी अल्लाह अकबर सारे पानी से सारे वफात की तरफ पहुंच चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन सबसे सर किया है और दुनिया वालों को जो पैगाम दिया है, ऐ लोगों एक दो करने के बाद, पापा करने के बाद, बेवतन होने के बाद मेरी नमाज है, मेरी जान भी जा रही है तो सजदे की हालत में जा रही है। हुसैन का पैगाम करबला से ये है कि तुम कितनी परेशानी में क्यों ना जाओ, लेकिन तुम्हारी नमाज कभी कदा न हो। अब जो सच्चा हुसैन ही होगा वो नमाज कभी कदा नहीं करेगा। और लोग भी करते हैं, फर्श वाले भी सजदे करते हैं, अर्श वाले भी सजदे करते हैं, फरिश्तों ने भी सजदा किया है, जिन्नात भी सजदा करते हैं, मशरिक वाले भी सजदा करते हैं, मगरिब वाले भी सजदा करते हैं, खाना काबा में रहने वाले भी सजदा करते हैं। लेकिन सजदा सब करते हुसैन जैसा सजदा तूने किया है ऐसा सजदा कयामत तक करेगा। इसलिए हुसैन को सजदे में जाते हुए तो सबने देखा, लेकिन सजदे से सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। शायर ने कहा उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है,
کیوں نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیبہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.